لاہور سردی کی آمد کو بریک لگ گئی۔ محکمہ موسمیات نے مطلع کر دیا سردی کا موسم دیر سے شروع ہوگا اور جلدی ختم ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث اسموگ میں اضافہ ہونے لگا۔ فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، جبکہ فضائی آلودگی کے باعث شہری آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کومل اسلم سے۔ جی کومل، بتائیے گا۔ جی بالکل، ویدر پیٹرن چینج ہونے کی وجہ سے جہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ موسم گرما کا دورانیہ کافی بڑھ گیا ہے، وہیں دوسری جانب ماہرین موسمیات کی جانب سے موسم سرما کا دورانیہ کم ہونے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اطلاع کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم بات کریں شہر لاہور میں فی الوقت صورتحال کے حوالے سے، تو اس وقت جو ہے وہ اسموگ کا بھی راج ہے، فضائی آلودگی بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ لاہوریوں کو اچھی خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت لاہور میں AQI کی مجموعی شرح 163 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر ریکارڈ کیا گیا ہے اور AQI کی مجموعی شرح 163 ہے، جبکہ لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کریں تو فیز 8 DHA جو کہ ایک پوش علاقہ ہے اور وہاں بھی AQI کی مجموعی شرح 219 ریکارڈ کی گئی ہے۔ سید مراتبلی روڈ میں 177 ریکارڈ کی گئی ہے اور US کونسولیٹ میں 176، جبکہ ٹھوکر نیاز بیگ میں AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ 163 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور کے باشندوں کو ایک طرف تو احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید ماہرین کی جانب سے ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ جاری ہے۔ بیسک پرپز یہ ہے کہ لاہور کی فضا آلودہ ہو رہی ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، حکومتی ادارے بھی جانتے ہیں، حکومتی نمائندگان بھی جانتے ہیں اور وہ ادارے بھی جانتے ہیں جو کہ لاہور میں اسموگ اور فضائی آلودگی کو کم کرنے میں اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ لاہور میں صورتحال بگڑتی ہی کیوں ہے؟ وہیکلز کا بے جا استعمال اور اسی کے ساتھ ساتھ وہیکلز کی فٹنس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر لاہور کی سڑکوں پر ابھی بھی بہت سی ایسی گاڑیاں چل رہی ہیں جو کہ فضائی آلودگی پھیلنے کا سبب بن رہی ہے۔ ابھی صبح کے اوقات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پنجاب یونیورسٹی کی بسیں ایک گورنمنٹ ادارہ ہے اور ان کی بسیں جو ہے وہ فٹنس ان کی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی پھیلانے کا سبب بن رہی تھی، کالا دھواں چھوڑ رہی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی عوام کی بات کریں تو ہماری عوام بھی کسی سے کم نہیں ہے، نہ تو اپنی گاڑیوں کا خیال رکھتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی فٹنس کا خیال رکھتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئے روز لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ ہی ریکارڈ ہوا چلا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید صورتحال جو ہے وہ بگڑے گی اور پھر انتظامیہ کو جو ہے وہ بلیم کیا جائے گا اور یہ بلیم گیم جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 مہینے اسی طریقے سے جو ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ چیز نہیں لا رہے کہ ہم لوگ سب ایک صف پہ کھڑے ہو کے اپنے لاہور کی فضا کو بہتر کرنے میں اپنا کردار کیوں نہیں نبھا رہے؟ ہم لوگ جو ہے وہ صرف میں نے آپ پہ بات ڈال دیا، آپ نے کسی اور ادارے پہ بات ڈال دی، تو یہ صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اداروں کے حوالے سے تو صورتحال چونکہ بہت بگڑ چکی ہے تو تعلیمی اداروں کو بھی الرٹ کر دیا اور اسی کے ساتھ بہت شکریہ ہمارے ساتھ کومل اسلم۔ اسموگ سے بچنے کے لیے ماسک لازمی قرار، سانس کے مریض ویکسین لگوائیں، ادویات لیں، ورزش گھر پر کریں، پارک میں جانے سے گریز کریں۔ پروفیسر راشد ضیاء کی سٹی 42 سے گفتگو۔ بولے اسموگ کی شرح بڑھ گئی ہے، خطرناک ہو سکتی ہے، شہری سونے سے پہلے گرم پانی پئیں۔ مزید کیا کہنا تھا ان کا آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسموگ بڑے شہروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اسموگ تو سراسر رہتی ہے اور ان دنوں میں آ کے اسموگ بن جاتی ہے۔ جب موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا، ہیومیڈیٹی بڑھ جائے گی اور ونڈ کی سپیڈ کم ہوتی ہے تو یہ اوپر کی تہوں سے فضا سے یہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس میں سانس لینے میں اور بہت سارے مسائل، ناک کے، کان کے، پھیپھڑوں کے اور خاص طور پہ آئیز کے اریٹیشن، الرجی، انفیکشن ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ بڑے شہروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے پلیز جب انڈیکس ہائی ہو، ٹی وی پہ بار بار آ رہا ہوتا ہے، اس وقت باہر ایکسپوز نہ ہوں، بچوں کو باہر نہ لے کے جائیں اور 3 چیزوں کا خیال ضرور کریں۔ ہینڈ واش بار بار کریں، نوز گلے کو پانی سے فلش کریں، نارمل سے زیادہ پانی پینا، وارم چیزیں زیادہ لینا اور رات سونے سے پہلے ضرور ایک لمبا سا سٹیم باتھ لے کے سوئیں۔ اس سے آپ بہت حد تک اس پولوشن سے بچے رہیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اسکولوں میں اسمبلی آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی، اسموگ کے باعث سینکڑوں طلبہ ناک اور گلے کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔
सरबराहान को स्कूलों में माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए शजरकारी करने का हुक्म जारी किया गया है। पौधे लगाकर माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है, स्कूल एजुकेशन की जानिब से कहा गया, जबकि स्कूलों में मज़कूरा अहकामात पर अमल दरामद 31 जनवरी तक किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्मोक के बायस स्कूलों में असेंबली आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्मोक के बायस सैकड़ों तलबा नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के बाइस जो है वो स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज़ पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस हवाले से स्कूलों को भी हदायत जारी की गई है कि सुबह के वक्त जो है वो स्कूलों में असेंबली जो है वो ना करवाई जाए, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर में जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इस हवाले से कहा गया कि 28 तारीख से जो है वो स्कूलों के कारोबार जो है वो 8:45 बजे कर दिए गए और 8:45 बजे से पहले कोई भी स्कूल नहीं खोलेगा, ख्वाह वो सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो। माहौलियाती आलूदगी से बच्चों को बचाने के लिए इकदाम इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त कहा गया है कि वो इस पर पाबंदी करें और आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों को ना करें, क्योंकि बच्चे जो हैं नज़ला ज़ुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और उनको इन बीमारियों से बचाने के लिए और बच्चों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए जो है एक तो स्कूल के कारोबार बढ़ा दिए गए हैं, दूसरा जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद रियाज थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर पुलिस के फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन स्मोक की रोकथाम के लिए रवां साल 192 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 204 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी डिवीजन में 55 मुलजिमान, कैंट में 70, सिविल लाइंस में 21 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए, सदर में 5, इकबाल टाउन में 5 और मॉडल टाउन डिवीजन में 48 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। धुआं छोड़ने वाली ट्रांसपोर्ट, फसलों की बाकियात जलाने के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों, भट्टा मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। CCPO की जानिब से कहा गया, महकमा पुलिस स्मोकदारों के लिए महकमों को मुआवनत फराहम कर रहा है। स्मोक का बाइस बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाए। CCPO की जानिब से ये भी हिदायत जारी की गई। मुख्तलिफ इदारों को सरकार से फंड मिल गए। जिनाह अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर के लिए 1 अरब 10 करोड़ जारी कर दिया गया, जबकि सितारा कॉलोनी, इत्तेहाद पार्क, जावेद कॉलोनी के गलियों में वाटर स्कीम के लिए 170 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा खजाना ने जिनाह अस्पताल में ट्रामा सेंटर बनाने के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए जो जारी किए हैं, जबकि इन सर्विस जो पुलिस मुलाजमिन फौत हो जाते हैं उनकी माली इमदाद देने के लिए 750 मिलियन रुपए यानी कि 75 करोड़ रुपया जो है वो IG ऑफिस को जारी किया है। ये महकमा खजाना ने जारी किया है, जबकि महकमा खजाना ने सितारा कॉलोनी, इत्तेहाद पार्क, जवेद कॉलोनी की गलियों और वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 85 मिलियन रुपए जो है 8 करोड़ 50 लाख रुपए यानी कि जारी किए हैं, जबकि आशियाना रोड और यूनाबाद की गलियों में सेवर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए जो है 85 मिलियन रुपए जो है जारी किए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने ये बजट जो है वो पुलिस को, जिनाह अस्पताल को ऑनलाइन भी कर दिया है। बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। लेस्को में खराब और जलने वाले मीटर्स की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। कंपनी में जलने और खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 1,20,000 तक जा पहुंची है। ज़राए के मुताबिक सिंगल फेज खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 1,14,000 तक रिकॉर्ड की गई है। हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सिंगल और 3 फेज मीटर्स का बहरान शिद्दत अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि ख़राब और डिफेक्टिव होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर की तादाद 1,20,000 से तजावुज़ कर रही है और उसके बाद सार्फिन को औसतन बिल भिजवाए जा रहे हैं। औसतन बिल भिजवाने की वजह से सार्फिन को अदायगी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो कंपनी की जानिब से रूल्स बनाए गए हैं उसके मुताबिक 11 माह की एवरेज ली जा रही है या फिर गुज़श्ता साल माह नवंबर या अक्टूबर में इस्तेमाल होने वाले जो यूनिट्स हैं उसकी बुनियाद पर बिलिंग की जा रही है। तहम जो देखने में ये आ रहा है कि सार्फिन ने रवां साल कीमतें बढ़ने की वजह से बिजली का कम इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके बावजूद मीटर्स की बर वक्त तब्दीली न होने की वजह से सार्फिन को इजाफी यूनिट चार्ज हो रहे हैं और भारी भरकम बिल अरसाल किए जा रहे हैं। दस्तावेज़ात में इस बात की निशानदही की गई है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ख़राब होने वाले सिंगल फेज मीटर की तादाद 1,14,000 तक जा पहुंची है,
जबकि 3 फेज जो ख़राब मीटर हुए हैं उनकी तादाद 6500 तक जा पहुंची है। इस तरह मजमूई तौर पर 1,20,000 के करीब ये मीटर्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं या जलने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं और कंपनी ने उनको तब्दील नहीं किया। और तब्दील ना होने की जो वजूहात बताई जा रही हैं कि कंपनी के पास इस वक्त मीटर्स का स्टॉक मौजूद नहीं है। नए मीटर्स ख़रीदने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इस वक्त जो सार्फिन जिस मुश्किलात से दो चार हैं उसका अजाला करने के लिए बर वक्त कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे और सार्फिन को इजाफी बिल किए जा रहे हैं। जी ठीक है, शाहिद सिप्रा बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें, लाहौर जनरल अस्पताल के शुबा मेडिसिन के डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए। डॉक्टर्स की MS, प्रिंसिपल और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज की क़यादत डॉक्टर तलहा आसिफ और डॉक्टर फरह ने की, जबकि हमारे मेडिकल यूनिट को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। मज़ीद डॉक्टर्स की जानिब से क्या कहा जा रहा है जानते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। जी, लाहौर जनरल हॉस्पिटल के शोबा मेडिसिन के हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। MS हॉस्पिटल और इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इन डॉक्टर्स के क्या मुतालबात हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एहतजाज का पर्पस क्या है और आखिर क्या मुतालबात हैं जो कि आप लोगों को एहतजाज करने पे मजबूर हो चुके हैं? हमारा आज यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हमारे वार्ड को एक जाबराना और ज़ालमाना तरीके से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे पास यहाँ, मैं आपको सूरत हाल का थोड़ा सा पहले बता दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। यहाँ पे हमारे पास साल के अंदर तकरीबन 5000 एडमिशन होते हैं और हमारा यहाँ पे 70 बेड का जो है हमें सहूलत दी गई है और यहाँ पे हमेशा जो है एक बेड पे 2-2 या 3-3 मरीज़ होते हैं और तमाम डॉक्टरान जाँ फिशानी से अपना फ़र्ज़ निभाते हैं और मरीज़ों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ते। नीचे इंतज़ामिया हमें इस बात पर मजबूर कर रही है कि हम एक ऐसे वार्ड में शिफ्ट हो जाए जहाँ पर सिर्फ 34 बेड हैं और ना सहूलियात का भी फकदान है। हमारे यहाँ पे HDO ICU जहाँ पे जदीद वेंटिलेटर और हमने अपनी मेहनत से और अपनी लगन से HDO और ICU की एक ईंट और एक मशीन जो है हमने खुद बनाई है। डॉक्टर साहब, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आखिर आपको एक वार्ड से दूसरी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट, इंतजामिया सबको मालूम है कि वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। इसमें पर्सनली इसमें क्या आप लोगों को फ़ायदा है? ये तो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मामला है। जी, आपकी बिल्कुल बात बजा है, लेकिन देखें कई पहलू हैं इस बात के। हमारे पास यहाँ पे ICU है जो 12 बेड का है और इस वक्त मेडिकल फ्लोर पे ये सबसे बड़ा ICU है जहाँ पे मरीज़ों को, जितने इंतहाई निगहदाश्त के मरीज़ होते हैं वहाँ को उनको एडमिट किया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। तो अगर हमारे पास यही नहीं होगा तो ये मरीज़ों का भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और जो डॉक्टर यहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे ICU एक इंतहाई निगहदाश्त जो एक वसी आप समझ लें कि एक बहुत आजकल अहमियत इख्तियार करी है, एक ऐसी जो है वो स्पेशलिटी है, उसका जो है यहाँ से महरूम हो जाएंगे और यहाँ पे डॉक्टरों को ना ICU का एक्सपीरियंस मिलेगा और मरीज़ों का भी इसमें नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया जी, इनकी अपना गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि यहाँ पे सरासल जो पेशेंट्स हैं उनका भी लॉस है। इन्होंने जो MS हॉस्पिटल हैं और प्रिंसिपल हैं और जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो किसी और जगह पे शिफ्ट ना किया जाए। ठीक है, अबू बकर शेख हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ की गई कार्रवाई कलअदम करार देने का केस। सदर YDA पंजाब समेत दिगर डॉक्टर्स अदालत में पेश हुए। अदालत की सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 21 नवंबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी गई। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान है जिन्होंने हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ की गई कार्रवाई कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 21 नवंबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत दी है और ये रिमार्क दी है कि अगर जवाब ना आए तो आइंदा समाज से सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हूँ। जस्टिस शुजात अली खान ने सदर YDA पंजाब डॉक्टर शैफ की जानब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की और दरख्वास्त गुजार की जानब से नुशाब खान एडवोकेट पेश हुए और इस मौके पे उनके साथ YD के जो अहदेदार थे वो भी जमा थे। पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की सदा की, जिस पे नुशाब खान एडवोकेट का ये कहना था कि अदालत हुकूमत पंजाब को पहले ही काफ़ी वक्त दे चुकी है और इसमें मजीद ताख़ीर जो है उससे दरख्वास्त गुजारों का मुस्तक़बिल दौ पर लग जाएगा। ताहम अदालत ने जो जवाब जमा कराने की मोहलत थी वो 21 नवंबर तक उसमें कहा कि ये जवाब कराएं पंजाब हुकूमत और इस केस को मजीद समाअत 21 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। CEO हेल्थ ऑफिस के बाहर तनख्वाहों की अदम अदायगी पर डेली वेजेस मुलाजमिन सराप एहतजाज हैं। एहतजाज में 200 से ज़ायद डेली वेजेस मुलाजमिन शरीक हैं। हम 3 माह से मुसलसल काम कर रहे हैं, मुजाहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है, मायदा वहीद वहाँ पर है, उनसे जान लेते हैं। जी मायदा।
सी हेल्थ ऑफिसर कोपर रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 से ज़ायद जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ये डेली वेजर्स हैं। इनका कहना है कि 3-3 माह और बल्कि 2-2 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है, हमें तनख्वाही नहीं दी जा रही है, और जब हम तनख्वाह का मुतालबा करते हैं तो हमें जो है वो ये कहा जाता है कि आप लोगों ने यहाँ पर काम ही नहीं किया। हमारे साथ यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा क्या इस टाइम नया अमल लाया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है डेली वेजर्स? हमारे 2 साल हो गए हैं, ठीक है। इन्होंने हमें कहते हैं आज मिलेगी सैलरी, कल मिलेगी, अभी तक नहीं मिली। इन्होंने कहा जी अगर किसी की एक भी एक्टिविटी होगी उसको सैलरी मिलेगी। ये हमारा कैंटोन है, सिर्फ एक वर्कर को सैलरी मिल रही है, ठीक है। उसको भी नहीं मिलती है नहीं मिलती वो नहीं पता। इन्होंने कहा लो न्यूज़ वाले को न्यूज़ ला दी कि वर्कर ही सारे गोश्त हैं। हम 300 वर्कर हैं, ये ऑनलाइन हमारे पास एक्टिविटी सबके पास मौजूद है, ठीक है। उसके बावजूद मुलाकात होती है कि किसको कागज़ देने, आज देने, कल देने, कोई पता नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए और क्यों सैलरीज अभी तक नहीं दी जा रही? हमें 7 साल हो गए हैं काम करते हुए और 2 साल हो गए हमें सैलरी नहीं मिल रही। हम इसी तरह धक्के खा रहे हैं। जब 5 बार इन्होंने हमें यहाँ पे बुलवा लिया और हमें सैलरी अभी तक नहीं मिली। ये क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? वज़ीर-ए-आज़म मरियम से हमें अपील है हमारी कि वो हमारी कुछ सुने आके यहाँ पे, कि हम छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं और कैसे आके हमने इतनी मेहनतों से काम किया और हमें कख भी नहीं मिला। इतनी सख्त गर्मी में डेली बेसिस ने काम किया है। कोई बताइएगा कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए और क्यों अभी तक आपको सैलरीज नहीं दी जा रही हैं? मैम 2 साल हो गए हम लोगों ने काम किया हुआ, लेकिन हमें अभी तक सैलरीज नहीं मिली। रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहबा से कि प्लीज़ हमें सैलरीज दिलवाई जाए। 2 साल से ज़ायद अरसा जो है वो गुजर चुका है। आप मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए और सैलरीज के हवाले से क्या कहा जाता है? हम लोग जब भी आते हैं ये हमें सैलरी नहीं देते, इसी तरह हमें कहते हैं कि आप इस दिन आ जाएं, इस दिन आ जाएं। बिल्कुल, रोज़ की बुनियाद पर जो है इनका कहना है कि हमें लॉलीपॉप दे दिए जाते हैं। जब हम सैलरीज के लिए यहाँ पर आते हैं तो हमें ये कहे कि आज या कल जो है वो सैलरीज दे दी जाएंगी, लेकिन उसके पर जो है वो हमें सैलरीज नहीं दी जा रही है। इसकी वजह से हम सरापा एहतजाज होने पर मजबूर हो चुके हैं। जी ठीक है मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान तकर्री के मामले पर तनाज़ात, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाइस चांसलर की तैनाती पर गवर्नर हाउस और ऐवान वज़ीर आला आमने सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 5 यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ शोबों के डीन्स की तैनाती के ऑर्डर किए, जबकि गवर्नर पंजाब ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तैनाती की समरीज मुस्तरद करके वज़ीर आला ऑफिस को भिजवा दी। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं हसन अली। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के जो अहदे हैं उन पर तकरीरियों का तनाज़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और वज़ीर आला पंजाब ने 5 यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ शोबों के डीन्स की तैनाती के ऑर्डर जो है वो किए थे और समरी जो है गवर्नर को भिजवाई गई थी। गवर्नर पंजाब ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की तैनाती की समरीज को मुस्तरद करके वापस वज़ीर आला ऑफिस को भिजवा दिया है। वज़ीर आला पंजाब ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने वाइस चांसलर की तरह हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए भी एक नाम जो है वो फाइनल करके भिजवाया था, जबकि वाइस चांसलर हो या हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐवान वज़ीर आला 3 नाम भेजने का पाबंद होता है। ये गवर्नर सेक्रेटेरिएट की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि ये भी बताया गया है कि 3 नामों में से एक नाम जो है वो गवर्नर ने फाइनल करना होता है। गवर्नर पंजाब ने डीन्स की तैनाती की समरी वापस वज़ीर आला ऑफिस को भिजवा दी है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने डीन्स की तैनाती करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन अली थे, अपडेट कर रहे थे। अब यहाँ पर बात करेंगे, टेफ्टा पंजाब ने अपने मातहत दफातर में मुलाजमीन यूनियन पर पाबंदी लगा दी है। यूनियन की जानिब से सरगर्मियाँ मुनक्किद करने पर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। डिटेल्स बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, टेफ्टा पंजाब ने अपने मातहत दफातर में मुलाजमीन यूनियन पर पाबंदियाँ कर दी। यूनियन की जानिब से सरगर्मियाँ मुनक्किद करने पर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया और इस वाले से नोटिस भी मुलाजमीन को जारी की गई। टेफ्टा एक ट्रस्ट है, यूनियन की इजाज़त नहीं देता। ताहम इस हवाले से टेफ्टा हुकाम का कहना है कि टेफ्टा पंजाब की जानिब से यूनियन पर पाबंदी का फैसला काबिल मजम्मत है और मुलाजमीन ने इस पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। उनका कहना है कि मुलाजमीन के हकूक़ के लिए यूनियन काम करती है, ताहम टेफ्टा हुकाम को चाहिए कि वो फैसले पर नजरसानी करे। जी ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। कस्टम्स फील्ड फॉर्मेशंस में मुख्तलिफ असामियों पर भर्तियां करने का अमल आखिरी मराहिल में। फील्ड फॉर्मेशंस में भर्तियों का अमल मुकर्रर करदा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। तफसीलात जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम।
बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हदायत के पेश नज़र कस्टम्स फील्ड फॉर्मेशंस में खाली असामियों पर भर्तियों का अमल शुरू किया गया था, जो कि बाकायदा तौर पर आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। और इसी के पेश नज़र तमाम फील्ड फॉर्मेशंस के जो सरबराहान हैं उन्हें खुसूसी मरासला अरसाल किया गया है, जिसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि तमाम जो सरबराह हैं तमाम फील्ड फॉर्मेशंस के ख़ास तौर पर जो डायरेक्टर जनरल, चीफ कलेक्टर, इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं जो असामियों के ऊपर भर्तियों का अमल है वो शफाफियत के साथ जो मुकर्रर करदा वक्त था तब तक मुकम्मल कर लिया जाए। जबकि इसके अलावा जो जारी करदा मरासला है उसके मतन के मुताबिक मजीद कहा गया है कि तमाम जो फील्ड फॉर्मेशन के सरबराहान हैं वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से जारी करदा है उसी के मुताबिक जो भर्तियों का अमल है तमाम तर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो शफाफियत के साथ मुकम्मल करें। और जबकि इस हवाले से जो फाइनल रिक्रूटमेंट लेटर्स का रिजल्ट है या डाटा है वो बोर्ड की जो ईमेल है उस पर 30 अक्टूबर से पहले तक भिजवा दें। जबकि इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम जो फील्ड फॉर्मेशंस कस्टम्स की हैं उनके सरबराह को कहा गया है कि तमाम तर जो भर्तियों का अमल है ये हर सूरत मुमकिन तौर पर 30 अक्टूबर से पहले मुकम्मल कर लिया जाए और इस हवाले से जो भी तमाम तर डाटा है फाइनल वो जरिया ईमेल भिजवा दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर हमारे साथ आगाह कर रहे थे। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर वापडा एहलकार का चालान। वापडा एहलकार ने बदला लेने के लिए सेक्टर बंद रोड की बिजली काट दी। सेक्टर बंद रोड में तैनात ट्रैफिक वार्डन ने वापडा एहलकार जुबैर का चालान किया। क्या मामला है ये, इस हवाले से बात करेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। जी इरफान। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के चला रहे हैं उनके खिलाफ कैंपेन का सिलसिला जारी है और इसी कैंपेन के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की जहां पे लड़ाई झगड़े के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं वहीं पर उनकी लाइट जो है वो काटना भी अब मामूल बन चुका है। आपको बताएं कि सेक्टर बंद रोड पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट का इस्तेमाल ना करने के ऊपर एक जो मोटरसाइकिल सवार जुबैर का चलान हुआ था, जिसने बाद में बताया कि वो वापडा का एहलकार है और उसका अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा और उसने जो है वो सेक्टर बंद रोड की लाइट जो थी वो काट दी और मीटर उतार कर साथ ले गया। इस हवाले से जुबैर जो वापडा एहलकार है उससे हमने रब्ता किया और उससे जब पूछा तो उसका कहना था कि वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और वापडा के जो एहलकार हैं उनका भी ख्याल नहीं किया जा रहा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनको बताया भी गया कि वो वापडा एहलकार है, वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसी बिना के ऊपर उसका चलान हो गया और उसके बाद उसने जो सेक्टर बंद रोड है उसकी जो मीटर है वो उतार लिया। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई रखने का जो है वो हक रखती है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि किसी को भी वायलेशन से रोका, जो वायलेशन करेगा छोड़ा जा रहा। इसके सख्त जो डायरेक्शन है वो जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हैं वहीं पे CTO लाहौर। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक।